حاتم جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک کتا زبان نکالے دکھائی دیا۔ حاتم نے اسے گود میں اٹھا لیا اور پانی تلاش کرنے لگا۔ اتنے میں ایک گاؤں نظر آیا۔ گاؤں والوں نے حاتم کو روٹیاں اور چھاچھ دی۔ اس نے 2 روٹیاں اور چھاچھ کتے کے آگے رکھ دی۔ کتے نے پیٹ بھر کے کھایا۔ حاتم شفقت سے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اتنے میں سخت سی چیز اس کے ہاتھ لگی۔ وہ جب غور سے دیکھا تو لوہے کی کیل تھی۔ حاتم نے وہ کیل اس کتے کے سر سے نکالی۔ وہ کتا ایک نوجوان کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ حاتم تعجب سے بولا، اے بندہ خدا، یہ کیا بھید ہے؟ نوجوان حاتم کے پاؤں پر گر پڑا اور بولا، اے بزرگ، میں ایک بہت دولت مند سوداگر کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ نے میری شادی کر دی۔ کچھ دنوں بعد میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میں تجارت کی غرض سے جب چین گیا ہوا تھا تو میری بدذات اور بیوی نے میرے حبشی سے شادی کی۔ وہ غلام تھا۔ جب لوٹ کر آیا تو اس نے سوتے میں یہ کیل میرے سر میں ٹھونک دی۔ اس نے کیل جادوگروں سے پڑھوا کر پہلے سے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ میں اس کیل کے لگتے ہی کتا بن گیا۔ اس نے دھتکار کر مجھے نکال دیا۔ میں کان ہلاتا بازار میں گیا۔ وہاں کے کتے مجھے جان کر اجنبی جان کر بھونکنے لگے اور مجھ پر جھپٹ پڑے۔ دہشت کے مارے شہر چھوڑ کر اس جنگل میں بھوکا پیاسا 3 دن سے مارا پھرتا ہوں۔ اللہ کے فضل سے آج تو آیا ہے اور مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور آدمی بنایا۔ میں تیرا کیسے شکریہ ادا کروں؟ حاتم یہ بولا، اے عزیز، تیرا گھر کس شہر میں ہے؟ اس نے کہا، 3 دن کی راہ پر ہے۔ اس شہر کو سورت کہتے ہیں۔ حاتم نے کہا، اسی شہر میں تو حارث سوداگر بھی رہتا ہے۔ اس کی بیٹی کے سوالوں کے لیے تو میں نکلا ہوں۔ اچھا تو اس کیل کو اپنے پاس رہنے دے۔ اگر بدلہ لینے کو جی چاہے تو اپنی بیوی کے سر میں کاٹ دینا، وہ کتیا ہو جائے گی، تیرا بدلہ پورا ہو جائے گا۔ غرض وہ اسی طرح کی باتیں کرتے چل نکلے۔ 3 روز کے بعد اس شہر میں داخل ہوئے۔ وہ نوجوان حاتم کو اپنے گھر لے آیا۔ حاتم کو ڈیوری میں بٹھلایا اور خود اندر گیا۔ تمام لونڈی غلام اس کے پاؤں پر گر پڑے۔ اس کی بیوی اور وہ حبشی غلام دونوں سو رہے تھے۔ نوجوان نے اس غلام کی گردن کاٹ ڈالی اور وہ کیل بیوی کے سر میں ٹھوک دیا۔ وہ وہیں کتیا ہو گئی۔ تب وہ اسے رسی سے باندھ کر باہر لایا اور حاتم کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا اور کہا، یہ وہی مکار عورت ہے اور یہ وہی غلام نمک حرام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے غلام کو صحن میں گاڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حاتم اس سے رخصت ہو کر سرائے میں آیا اور اس سوداگر بچے سے ملا۔ سوداگر بولا، اب ایک مدت سے وہ آواز نہیں آتی۔ حاتم نے کہا، اب اللہ کے فضل سے اس کی خبر لے آیا ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ حارث کے گھر گیا۔ حارث کی بیٹی پردے ڈلوا کر اندر بیٹھی اور حاتم کو بلوایا۔ پھر حاتم نے ابتدا سے لے کر انتہا تک جو کچھ دیکھا سنا تھا سب بتا دیا۔ اس نے کہا، یہ سچ ہے، اب وہ آواز نہیں آتی۔ اب جلدی جا اور ماہ پری شاہ کا شاہ مہرہ لا دے۔ حاتم حارث کی بیٹی کی سے رخصت ہو کر سوداگر کے پاس آیا اور بولا کہ اب میں اس کا تیسرا سوال پورا کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جنگل کا راستہ دیا۔ چند روز بعد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ ذہن میں خیال آیا کہ اب دیو کے بادشاہ سے ملنا چاہیے اور اس سے ماہ پری شاہ کا مقام پوچھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر
उसी गार में उतरा जिसमें पहले गया था। थोड़े दिनों बाद फिर वही जंगल नजर आया। उसको तय करके इस गांव में पहुंचा जहां पहले गया था। लोग उसे पहचान कर बस्ती में ले गए, फिर वहां से दूसरे गांव पहुंचे और उसी तरह आखिरकार बादशाह फरोखाश के पास पहुंच गया। बादशाह ने कहा, अब किस घर से आना हुआ? हातिम ने कहा, माहपरी शाह के हाथ में शाह मोहरा है, उसको लेने आया हूँ। बादशाह बोला, ए नौजवान, वो मोहरा लेने की किसमें ताकत है? दियों की मजाल नहीं कि वहां जाएं। तू बेचारा किस शुमारो कतार में है? हातिम ने कहा, जिसने मुझे यहाँ पहुँचाया है वही वहां तक भी पहुँचा देगा। तुम सिर्फ एक शख्स मेरे साथ कर दो कि रास्ता बता दे। चुनाचे बादशाह ने कई देव हातिम के साथ कर दिए कि सरहद तक पहुंचा दें और वहीं हातिम के पास वापस आने तक बैठे रहे। 1 महीने तक हातिम माहपरी शाह की सरहद पर पहुंचा। देव वहीं रुक गए और हातिम आगे बढ़ा। आगे पहाड़ आसमान से बातें करता दिखाई दिया। वो उधर चला ही था कि हर तरफ से परीजादों ने आकर घेर लिया। वो पूछने लगे, तू कौन है? यहाँ क्यों आया और कौन तुझे लाया? हातिम ने कहा, मुझे अल्लाह लाया है और मैं शहर सूरत से आया हूँ। उन्होंने कहा, मालूम होता है तू माँ परी शाह का मोहरा लेने आया। हातिम चुप रहा। तब परीजादों ने आग भड़काई और हातिम को आग में डाल दिया। हातिम 3 रोज तक इसी आग में रहा। वो सब चले गए। उसके बाद जो निकला तो एक तार भी उसके लिबास का ना जला था। वहां से वो एक तरफ को चला। थोड़ी दूर गया होगा कि हर तरफ से परीजादों ने आकर घेरा और कहने लगे, ए नौजवान, तेरी ही सूरत का एक शख्स यहाँ आया था, हमने उसको आग में डाल दिया, तू वही है या दूसरा? हातिम ने कहा, अहमको, जो आतिश कदे में पड़े वो क्यों कर जीता बचे? फिर उन्होंने हातिम को एक भारी पत्थर के नीचे 3 रोज दाबे रखा। चौथे रोज निकाला और उसकी टांग पर पकड़कर इस जोर से घुमाकर फेंका कि वो 18 कोस दूर दरियाए शोर में जा गिरा और एक बड़ा मगरमच्छ उसको निगल गया। हातिम को जब होश आया तो अपने आप को बड़े मगरमच्छ के पेट में पाया। घबरा कर दौड़ने लगा और उसके दिलो जिगर को पांव से कुचलने लगा। मगरमच्छ उसके हजम ना होने से परेशान होकर खुशकी में गया और काय करने लगा। हातिम उसके मुंह से निकल पड़ा। फिर भूखा प्यासा किसी तरफ चला। इतने में गौल परीजादों का आ पहुंचा। उन्होंने पूछा, तुझको कौन यहाँ लाया है? हातिम ने कहा, मुझको अल्लाह लाया है। फरोखाश बादशाह के देव मुझे माहपरी शाह की सरहद तक लाए थे। तुम्हारे भाइयों ने मुझको आग में डाल दिया मगर अल्लाह ने बचा लिया। फिर उन्होंने दरिया में डाल दिया मगर वहां मगरमच्छ निगल गया। वो भी ना हजम कर सका तो किनारे पर आकर उगल दिया। ये सुनकर उन्होंने कहा, तुझे ऐसा क्या काम है जो तू इतनी मुसीबतें उठाई? हातिम ने कहा, मुझे माँ परी शाह से काम है। उन्होंने कहा, हमारे सामने माँ परी शाह का नाम ना ले क्योंकि हम उसके नौकर हैं। अगर उसे मालूम हो गया कि आदमजाद यहाँ आया है तो वो हमको जीता न छोड़ेगा। हातिम ने कहा, तो मुझे बांध कर उसके पास ले चलो। आखिर ये तय हुआ कि हातिम को वहीं रखा जाए और बादशाह को इत्तला दी जाए। बादशाह ने हुक्म दिया कि हातिम को हाजिर किया जाए। चुनाचे परीजाद उसे लेकर चले। ये बात हर जगह फैल गई कि आदमजाद को गिरफ्तार करके माहपरी शाह के हुजूर में लिए जाते हैं। ये सुनकर मनसा परीजाद की बेटी हुस्ना परी ने अपनी हमजोलियों से कहा, उस आदम को देखना चाहिए, उस आदमजाद को देखना चाहिए। बस एक जिद लगा दी। उन्होंने कहा, अगर देखना है तो रास्ते ही में देख लो।
वरना फिर ना देख सकोगी। ये सुनकर वो अपनी माँ के पास आई और बाग की सैर करने के बहाने रुखसत हुई। वहां का दस्तूर था कि जो कोई बाग की सैर को जाता तो 40 रोज तक वहीं रहता। गर्ज वो रोजान रवाना हुई। इतने में एक उसकी हमजोली बोली कि दरिया कुलजुम के चौकीदार फला रास्ते से आते, लिहाजा वहीं चलो। चुनाचे सब उधर चली गईं। क्या देखती हैं कि एक लश्कर पड़ा है। हुस्ना परी ने एक परी से कहा कि तू जाकर जरा पता चला कि क्या चक्कर है, माजरा क्या है। वो गई और उनसे पूछने लगी कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम दरियाए कुलजुम के चौकीदार हैं, एक आदमी को गिरफ्तार करके हुजूर आली में जाते हैं। उसने कहा, वो कौन है। उन्होंने कहा, हातिम को दिखला दिया। वो लौटी और हुस्ना परी से हातिम के हुस्न और जमाल की तारीफ करने लगी। हुस्ना परी हातिम को देखने की और भी मुश्ताक हुई। बोली कि ए बुआ, उसे कैसे देखूं। उन्होंने कहा कि रात को जब सिपाही सो जाएंगे उस वक्त हम उसको आजाद ले आएंगे। इतने में आफताब गुरूब हुआ। परियां इस लश्कर की तरफ बढ़ीं। क्या देखती हैं कि हातिम ख्वाब गफलत में है। तब हातिम के सर पर बेहोशी की दवा छिड़ककर हुस्ना परी के बाग में उठाकर ले गईं। हुस्ना परी भी वहां आ गई। आकर क्या देखती है कि खूबसूरत नौजवान बेहोश पड़ा। वो उसे बहुत अच्छा लगा। हातिम ने जब आंखें खोली तो देखा कि एक परीजाद जमीला सरहाने खड़ी। हक्का बक्का होकर बोला, तू कौन है और मुझे यहाँ कौन लाया है। हुस्ना परी ने कहा, ए नौजवान, ये बाग मनसा परीजाद का है और मैं हुस्ना परी उसकी बेटी हूँ। मैं तुझको देखना चाहती थी, इसलिए ये परियां तुझको वहां से उड़ा लाई। हातिम ने कहा, नाहक मेरे काम में खलल किया। परी ने कहा, वो कौन सा काम है। हातिम ने कहा, मैं परी शाह का मोहरा लेने आया। वो हंसी और बोली, ये काम बहुत मुश्किल है, तेरी किस्मत से हाथ लगे तो लगे, बहरहाल मैं भी कोशिश करूंगी। उधर जब वो लश्कर बेदार हुआ और हातिम को ना पाया तो सब बेहद परेशान हुए। कोशिश करके मालूम किया कि परीजाद हातिम को चुरा कर ले गई है। लिहाजा सबने ये तय किया कि कहीं छुप रहें और चुपके चुपके तलाश करें। अगर खोज मिले तो पकड़कर बादशाह के पास ले जाएं। चुनाचे वो सब भागे और छुप गए। रात भर ढूंढते और दिन भर छुपे रहते। इसी तरह एक मुद्दत हो गई। एक दिन माह परीशा ने कहा, अरे वो आदमजाद अभी तक नहीं आया, जाओ खबर लाओ। चुनाचे एक परीजाद उड़ा और पुल के पल में उस लश्कर के सरदार के पास जा पहुंचा और कहने लगा, बादशाह मुंतजिर है, वो आदमी अब तक नहीं पहुंचा। उसने कहा, उसे तो एक मुद्दत हुई रवाना हुए। परीजाद ने आकर बादशाह को बताया। वो इस खबर को सुनते ही आग बगोला हो गया। हुक्म दिया, फौरन तलाश करो। चुनाचे एक सरदार लश्कर लेकर निकल गया और तलाश करने लगा। इतने में एक शख्स उस लश्कर का भागा हुआ उनके जासूसों को नजर आया। वो उसे बादशाह के पास लेकर आ गए। उसने बादशाह को सारे हालात बताए। ये सुनकर बादशाह ने 5-6 हजार परीजादों को हुक्म दिया कि इसे जहां पाओ वहीं से ले आओ। गर्ज वो उसकी तलाश को गए। इत्तेफाक से एक परीजाद का गुजर हुस्ना परी के बाग में हुआ। वहां उसे हुस्ना परी हातिम के साथ नजर आई। जासूस ने कहा, ए नमक हरामो, इस आदमी को बादशाह ने तलब किया था, तुम हमको गाफिल पाकर उसे उड़ा लाए, इसे हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर हुस्ना परी बरहम होकर बोली, तू मेरे बाग में क्यों आया है। अरे कोई है, देखो तो सही जरा। ये सुनते ही सब परियां उस पर दौड़ पड़ी।
وہ डर कर भागा और बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि मैं उसी गिरोह में से हूँ जो आदमजात को हुजूर आली में लाता था। रात को हुस्नापुरी उससे चुरा कर ले गई और अपने बाग में रख छोड़ा है। इत्तेफाक से एक दिन मैं उस बाग में जा निकला तो उस आदमजात को देखा। मैंने शोर मचाया कि उसे पकड़कर हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर हुस्ना परी ने परियों से कहा, इसे पकड़कर खूब मारो, मैं जान बचाकर यहाँ आया हूँ, आले जा। ये सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और हुक्म दिया कि मनसा परी जात को उसकी बेटी, बीवी और उसके आदमी को फौरन पेश किया जाए। चुनाचे सब दौड़ पड़े और मनसा परी जात की हवेली को घेर लिया। वो बेचारा बेखबर था। उन्होंने सारा माजरा कह सुनाया। चुनाचे वो उस बाग में आया। वहाँ क्या देखता है कि वाकई हुस्ना परी इस आदमजात के साथ वक्त गुजार रही। बदहवास होकर कहा, तूने क्या जुल्म किया, माँ बाप का नाम डुबो दिया, फौज तुझे पकड़ने को आ रही है। ये सुनकर वो कांपने लगी। इतने में शाही फौज आ पहुंची और सबको गिरफ्तार करके बादशाह के पास ले गई। मनसा परीजाद ने बादशाह से कहा, इस बंदे को उसकी मुतालिक खबर न थी। फिर भी हर तरह फरमाबरदार है। बादशाह ने रहम खाकर उसे बख्शा और फिर हातिम को पेश किया गया। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा कि तू आदमजाद यहाँ क्यों आया? हातिम ने कहा, जहां पना फरोखाश बादशाह से आपके औसाफ सुने तो आपको देखने का इश्तियाक हुआ। फिर बादशाह ने कहा, ऐ नौजवान, इंसानों में कोई हकीम भी है? एक मुद्दत से मेरे बेटे की आंखें दुखती हैं, उसके सिवा मेरा कोई लड़का नहीं। अफसोस कि वो भी अंधा हो गया। हातिम बोला, अगर शहजादा अच्छा हो जाए तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? बादशाह बोला, जो तू मांगे। चुनाचे सुबह को हातिम ने वो मोहरा पगड़ी से निकालकर घिसा और शहजादे की आंखों पर लगाया। शाम तक सुर्खी जाती रही मगर बीनाई न आई। लिहाजा हातिम ने कहा, पर्दा जुल्मात पर एक दरख्त है, उसको नौरेज कहते हैं। अगर दो तीन कतरे उसके पानी के मिल जाएं तो उसकी आंखें रोशन हो जाएं। ये सुनकर बादशाह ने कहा, ए परीजादो, कौन उस दरख्त का पानी लाएगा? ये सुनकर सब सर झुकाकर बोले कि जहां पना वो राह तो निहायत पुरखतर है, वहाँ बहुत से देव और भूत पलीत रहते हैं। इतने में हुस्ना परी बोली, अगर जहां पना मेरा गुनाह माफ कर दे और ये इंसान मुझे बख्श दें तो मैं दरख्त का पानी ले आऊं। बादशाह ने कहा, तेरा गुनाह बख्शा और ये आदमी भी तुझे दिया। हातिम बोला, ए हुस्ना परी, अगर तमाम उम्र मुझे रखना चाहती है तो ये तो ना हो सकेगा। अगर उस पर राजी है कि जब तक चाहूँ रहूं और जब चाहूँ चला जाऊं तो मुज़ायका नहीं। हुस्ना परी उस पर राजी हुई और कई परियों को लेकर रवाना हो गई। 40 रोज के बाद जुल्मात में पहुंची तो क्या देखती है कि एक दरख्त ऐसा अजीम शान कि उसकी फंगी आसमान तक जा पहुंची है और उससे कतरे टपक रहे हैं। हुस्ना परी ने एक बोतल में ये कतरे जमा किए और वहां से उड़ी। इतने में उस दरख्त का चौकीदार देव आ पहुंचा, मगर हुस्ना परी भाग गई और हाथ ना लगी। फिर 40 रोज में आ पहुंची और बोली, हुजूर के इकबाल से ये लौंडी उस दरख्त का पानी ले आई है। ये कहकर बोतल को बादशाह के आगे रखा। बादशाह ने बोतल हातिम को दे दी। हातिम ने फौरन उस मोहरे को इस पानी में रगड़कर शहजादे की आंखों पे लगा दिया। 7 रोज तक आंखों पर पट्टी बंधी रही। 8वें रोज जो पट्टी खोली तो आंखें ऐसी थीं जैसे कि पैदाइश के वक्त थीं।
शहजादे ने बाप का दीदार किया तो बहुत खुश हुआ। हातिम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बादशाह ने उसे बेशुमार दौलत उसके आगे रख दी और परीजादों से कहा, इस सामान को उसके साथ ले जाना। अब हातिम बोला, ऐ शहंशाह गैती पना, ये जो कुछ दिया है तो आपकी इनायत है, लेकिन उम्मीदवार उसका हूं जो आपने वादा किया था। बादशाह ने कहा, मांग क्या मांगता है? हातिम ने कहा, ये मोहरा जो आपके हाथ में है उसे बख्श दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने कहा, मालूम होता है शायद ये हारिस तो सौदागर की बेटी ने तुझसे मांगा है। बहरहाल मैं तुझसे वादा कर चुका हूँ। ये कहकर शाह मोहरा हातिम को दिया और कहा, ये मोहरा उसके पास रहने न दूंगा। हातिम ने अर्ज की कि जब मेरा काम हो जाए उसके बाद आप मुख्तार हैं। हातिम ने उसको लेकर अपने बाजू पर बांधा। मोहरे का बांधना था कि जितने खजाने और दफीने जमीन में कड़े हुए थे नजर आने लगे। हातिम से बादशाह रुखसत हुआ। उस वक़्त बादशाह ने अपने अय्यारों और नज़रबाजों से कहा कि जिस वक़्त हारिस की बेटी की शादी हो जाए तो उस मोहरे को किसी तरकीब से ले आए। हातिम चंद रोज हुस्ना परी के साथ रहा और फिर वहां से रवाना हुआ। वो परीजाद फरोखाश की सरहद तक पहुंचा और वहां से रुखसत हुए। वहां से फरोखाश के देव जो हातिम को पहले पहुंचा कर गए थे साथ हो लिए और चंद रोज में फरोखाश के पास ले आए। फरोखाश उठकर हातिम से बगलगीर हुआ और बड़ी तवाज़ु की। हातिम रात भर वहां रहा और सुबह को रुखसत होकर गार की राह से सूरत आ पहुंचा। देवों को ज़रो जवाहर बख्श कर रुखसत किया। फिर खुद हारिस की बेटी के घर आया और शाह मोहरा उसके हवाले किया। वो बहुत खुश हुई और बोली कि अब मैं अपना वादा पूरा कर सकती हूँ। हातिम ने हारिस को बुलवाकर उस सौदागर बच्चे का हाथ उसके हाथ में दिया और कहा, इसे अपना फर्जंद समझो। ये सुनकर हारिस ने ब्याह की तैयारी की और अपनी बेटी को सौदागर बच्चे के साथ ब्याह दिया। 10 दिन बाद मोहरा उस लड़की के हाथ से गायब हो गया। वो रोने लगी तो हातिम ने दिलासा दिया और कहा, मैंने तेरे शौहर को अपना ज़रो जवाहर दिया है कि 7 पुश्त तक आराम आएगा, काम आता रहेगा। फिर हातिम वहां से रुखसत हुआ और हुस्न बानो के सवाल के जवाब की फिक्र में चल पड़ा। कई दिन के बाद मंजिलें तय करता हुआ एक दरिया के किनारे जा पहुंचा। वहां एक आलीशान महल नजर आया। उसके दरवाजे पर लिखा था, नेकी कर दरिया में डाल। ये उसको पढ़कर सजदा शुक्र बजा लाया। अब जो जरा आगे बढ़ा तो महल से कुछ लोग निकले और हातिम को अंदर ले गए। वहां क्या देखता है कि 100 बरस का एक नूरानी सूरत बूढ़ा तख्त पर बैठा। हातिम को देखते ही उठा और गले लगाकर तख्त पर बिठाया। फिर तरह तरह के खाने खिलाए। खाने के बाद हातिम से पूछा, आपने अपने महल पर ये क्यों लिखा रखा है? हातिम ने पूछा। उसने कहा, मैं लुटेरा था, रात को मुसाफिरों को लूटता था और दिन को मजदूरी करता था। इसके अलावा 2 रोटियां घी लगाकर और शक्कर छिड़ककर दरिया में फेंक देता था और कहता कि ये अल्लाह के वास्ते करता हूँ। यूं ही एक मुद्दत गुजर गई। एक दिन बीमार हुआ, मरने के करीब पहुंचा। एक दिन बेहोशी में क्या देखता हूँ कि एक शख्स मेरा हाथ पकड़कर दोज़ख दिखाता है और कहता है, तेरी जगह ये है। वो मुझे दोज़ख में डालने ही वाला था कि इतने में 2 फरिश्ते आ गए और मेरा बाजू पकड़कर कहने लगे कि इसको तो हम दोज़ख में ना जाने देंगे, इसकी जगह दोज़ख नहीं बल्कि जन्नत है। चुनाचे वो मुझे जन्नत की तरफ ले गए। वहाँ एक बुजुर्ग उठकर खड़ा हुआ और कहने लगा कि उसको क्यों लाए, अभी तो इसकी उम्र के 200 बरस बाकी हैं।
اس کا ہم نام ایک اور ہے، اس کو لے آؤ۔ یہ سن کر وہی دونوں مجھ کو یہاں پہنچا گئے اور کہنے لگے کہ ہم وہی 2 روٹیاں ہیں جو اللہ کے واسطے تو دریا میں ڈالتا تھا۔ اتنے میں مجھ کو ہوش آ گیا، میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو 2 روٹیاں دریا میں ڈالنے گیا کہ 100 دینار پانی سے نکل پڑے۔ میں ان کو اٹھا لایا اور شہر میں ڈھنڈورا پٹوایا کہ اگر کسی کا مال دریا میں گر پڑا ہو تو مجھ سے لے جائے۔ رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص کہتا ہے، اے بندہ خدا، وہ 2 روٹیاں تیرے کام آئیں، اللہ کا حکم ہے 100 دینار تجھے ہر روز ملا کریں گے، تو ان میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر اور باقی سے اپنی گزر اوقات کر۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، سجدہ شکر بجا لایا، پھر یہ عمارت بنوائی اور اس کے دروازے پر یہ جملہ لکھوا دیا، مجھے اب اسی طرح 100 دینار پہنچتے ہیں، میں مسافروں اور فقیروں کو دیتا ہوں اور یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ اب 100 برس میری عمر کے باقی ہیں اور اس عمارت کو بنے ہوئے 100 برس ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حاتم نے اللہ کا شکر ادا کی اور 3 روز اس کے پاس رہا۔ چوتھے دن اس بزرگ سے رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف چلا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایک جنگل میں جا پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ ایک کالا سانپ ایک خوش رنگ سانپ سے لڑ رہا ہے اور ان قریب مار ڈالے گا۔ حاتم نے کالے سانپ کو للکارا اور کہا، اے موذی، خبردار۔ یہ سن کر وہ ڈرا اور چلا گیا۔ دوسرا سانپ بھاگنے کی تاب نہ رکھتا تھا، درخت کے نیچے ٹھہر گیا۔ حاتم نے کہا، اے سانپ، جب تک تیری طبیعت بحال نہ ہوگی میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ ذرا دیر بعد وہ توانا ہوا اور درخت پر چڑھ کر آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ حاتم کو تعجب ہوا۔ اتنے میں اس نے کہا، اے عزیز، میں جنوں کی قوم سے ہوں، اس شہر کا بادشاہ میرے باپ کا غلام ہے، ایک مدت سے یہ میری جان کا دشمن ہے، آج قابو پار کر مارنا چاہتا تھا کہ اللہ نے تجھ کو میری حفاظت کے لیے بھیجا۔ پھر وہ حاتم کو اپنے گھر لے گیا۔ صبح شہزادے نے اس غلام کی گردن ماری اور حاتم رخصت ہو کر شاہ آباد کی طرف روانہ ہوا۔ غرض وہ 2.5 برس اور 15 دن کے بعد شاہ آباد میں داخل ہو کر سرائے میں اترا اور منیر شامی سے ملا۔ یہ خبر حسن بانو تک پہنچ گئی۔ اس نے فوراً حاتم کو بلوایا اور کہنے لگی، اے عالی ہمت نوجوان، تو بہت دنوں بعد آیا، بتا کیا خبر لایا۔ حاتم نے جو کچھ دیکھا اور بوڑھے مرد کی زبانی سنا تھا بیان کیا۔ حسن بانو یہ سن کر بہت خوش ہوئی، کئی خواہ میووں کے بھجوائے۔ حاتم نے منیر شامی کے ساتھ کھانا کھایا اور اس سے کہا، اب میں تھوڑے دنوں میں باقی سوالات بھی پورے کر دوں گا، قطعی پریشان نہ ہو۔ پھر حسن بانو کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حسن بانو، اب کون سا سوال ہے؟ جلد بتا کہ میں اس کے لیے کمر بستہ ہو جاؤں۔ حسن بانو نے کہا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جنگل میں کھڑا کہتا ہے، کسی سے بدی نہ کر، اگر کہے گا کرے گا وہی پائے گا، بس اس کی خبر لا۔